नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद कांग्रेस के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आए और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर आरोप लगाती हुई नजर आई कि कांग्रेस का तो काम ही यही है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। देखिए जरा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश सबका है। आज तो देखा आपने कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह ने सेना को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबूत जो है वो अभी तक पेश किए ही नहीं गए हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या बयान दिया है जब उनसे तमाम सवाल किए गए, जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। Asking for sabut in this particular case also, and every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with that. I agree with that, but why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views. But the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job. They do a job exceptionally well. And they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him
that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए. But the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है. कल कश्मीरी पंडित्स का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई. कश्मीरी पंडित्स के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है. वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है. ठीक है, तो और उसको हम दोहराते रहते हैं. नेटवर्क न्यूज 18 से व्हाट वाज द पहला सवाल? My first question was that you have been, on Padyatra for last many months now. Yeah. And yesterday from your podium, Digvijay Singh made, controversial remarks. No, I don't think so. I don't think so. I think the yatra has achieved something fundamental and very powerful. What the yatra has done already, and this cannot be changed now. It has shown that there are two visions of India. One is a hate-filled, arrogant, cowardly vision, and another is love-filled, embracing, brave vision. And it has made those two visions absolutely crystal clear, right? Millions of people, not just myself, millions of people have walked across the breadth of this country. They have supported this yatra. And this yatra has changed the narrative in the country. You in the media might not like to accept it, but it's a fact, right? And nothing can change that. One or two comments, that are said by a leader are not going to change the fundamental fact that the yatra has been a success. The yatra has brought India together. The yatra has shown that Indian people believe much more in love and affection than in hatred and anger. So I am quite pleased by what this yatra has achieved. तो देखा आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी जवाब देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो बयान है ये व्यक्तिगत बयान है दिग्विजय सिंह का. पार्टी की विचारधारा या फिर पार्टी का जो सोचना है वो दिग्विजय सिंह से कहीं ना कहीं परे है. और राहुल गांधी जब जवाब देते हुए नजर आए तो काफी गुस्से में थे. हालांकि उन्होंने कहा कि मजबूरन मुझे इस तरीके की बातें करनी पड़ रही हैं, कहना तो मैं नहीं चाहता. अब सुनते हैं जरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को लेकर क्या कहा है. ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए. क्या स्टेटमेंट है सर? सेना को लेकर क्या है पार्टी का स्टैंड? सर आप तो आ जाओ. चलो. तो देखा आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहीं ना कहीं ये बयान दिया कि पार्टी जो है इससे यानी कि दिग्विजय सिंह का जो बयान है उससे कहीं भी सहमति नहीं रखती. अब बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो क्या इसका सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी और कांग्रेस एक बार फिर चुनाव इसी मुद्दे को लेकर यानी कि जो दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आएगी. कमेंट करके जरूर बताइएगा. फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही. नमस्कार.